हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसा चल रहा है आप लोगों का? बढ़िया। सो चलो ठीक है। टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू solve or we are going to learn about ethers. First, the nomenclature of ethers, and in previous lecture we learnt about how we can prepare phenols and how the phenols react with each other. ठीक है, तो आपने फिनॉल कैसे प्रिपेयर करते हैं वो भी पढ़ा था, और फिनॉल के केमिकल रिएक्शन भी पढ़े थे। कौन से? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड देन कोल्बे रिएक्शन, रेमर-टिमन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड द रिएक्शन विथ जिंक डस्ट। याद आ गया? ये सब 4-5 आपने रिएक्शन पढ़े थे। कौन सा पढ़ा था? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, फिर उसमें भी हैलोजिनेशन नाइट्रेशन पढ़ा था आपने, ठीक है। एंड देन कोल्बे रिएक्शन, रेमर-टिमन रिएक्शन, और फिर रिएक्शन विद जिंक डस्ट, एंड देन ऑक्सीडेशन जिसमें आपने बेंजो क्विनोन बनाया था, बेंजोक्विनोन। तो और क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, तो वो मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। बट एक कंप्लेन है यार कि बहुत ही थोड़े लोग, जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन दिया कि यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11.53 और फ्रॉम एक्सरसाइज, बहुत ही कम लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और मुझे सेंड करते हैं। बहुत ही कम लोग, आउट ऑफ 118 मीन्स आउट ऑफ 120 ऑलमोस्ट, मान लो आप 120 लोगों में से ओनली फ्यू पीपल, काउंट करके 10 से 12 या 15 लोग देते हैं। एंड I have already told you guys that if you will not cooperate, you will not solve question. Even at this time, when you have a lot of time at home, and you are wasting your time, and who the guys who are not serious about all this online studies, online learning, that is the future of India and for yourself also. अभी नहीं सोचोगे तो फिर कब? उसको सॉल्व भी नहीं करके, वो 10 से 15 लोग ही सॉल्व करते हैं और सेंड करते हैं, वो बहुत अच्छे से सॉल्व भी करते हैं और पूछते भी हैं। 10 से 15 लोग ही, ठीक है। और बाकी पता नहीं कौन सी दुनिया में, मुझे नहीं पता। इतना समझाने के बाद भी उनको क्लियर समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना क्या नहीं करना। देखना फिर अपना, ठीक है। फिर 1 बाय 1 करके हम मिलेंगे भी। क्या करें, अभी आप लोग ऐसा कर ही रहे हो कि मिलना ही पड़ेगा आप लोगों से। So today in this lecture we are going to learn about the nomenclature of ethers, then we will go for preparation of ethers and then chemical reaction. Okay, so let's start with this session. So ethers can be classified into two types. Ethers can be classified into two types, that is simple ethers, or that is known as symmetrical. Simple or symmetrical, and here we know that second one is mixed ethers or unsymmetrical ether. So simple ether or symmetrical ether, and mixed ether or unsymmetrical ether. Ethers are of two types, simple or mixed, symmetrical or unsymmetrical. ठीक है, क्लियर हो गया? So for next question होगा, what is symmetrical ether? What is symmetrical ether? What is symmetrical? Symmetrical means what? ईथर को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, ROR, मतलब O है, इस O से दो अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे तो दैट इज नोन एज ईथर। तो अगर ये O से दोनों साइड में सेम अल्काइल ग्रुप है, ये दोनों क्या हो गए? सेम। So that is known as what? Symmetrical or simple ether, like CH3O and CH3। देखो आप जरा, CH3O CH3। अब इसमें जो आपको दिख रहा है, इसमें O के दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप क्या है? सेम है। So that is known as what? Simple or symmetrical ether. Clear? Okay, so को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। You have ether
ethers of two types, that is simple and mixed. Simple ethers are also known as symmetrical and mixed ethers are known as unsymmetrical. Unsymmetrical ether. Unsymmetrical ether. Clear? So when you have simple or symmetrical ether, it means, what is the meaning of this simple or symmetrical ether? Means you have this type of structure, CH3OCS3. और unsymmetrical और mixed में क्या होगा बेटा? You have this type, CH3OC2H5. तो सिंपल सा मुझे मीनिंग मिल गया कि अगर मेरे पास जो O है उसके दोनों साइड में सेम टाइप का अल्काइल ग्रुप अटैच है, when oxygen atom of an ether is bonded to what? Two same alkyl group, then that is known as simple or symmetrical ether. When it is bonded to two different alkyl groups, then what? Unsymmetrical ethers. Unsymmetrical ethers. Clear? बहुत ही सिंपल है. आप यहाँ पे फिर से एक और एग्जाम्पल ले सकते हो. ओ यहाँ पे लिख दिया आपने C2H5 और यहाँ पे भी लिख दिया आपने C2H5. ये हो गया सिंपल. और अगर आपने फिर से O लिया, इधर लिख दिया आपने CH3 और इधर ले लिया आपने CH3 एंड क्या CH3. तो ये क्या हो गया? अनसिमेट्रिकल ईथर और मिक्स्ड ईथर. क्लियर? पक्का? चलो नेक्स्ट करते हैं फिर. तो नॉमेनक्लेचर तो बहुत ही सिंपल है. आप ये क्वेश्चन आप देख सकते हो. हाँ, अभी अगर इसका IUPAC नेम लिखना हो बेटा, क्या लिखना हो? IUPAC नेम. तो आप कैसे लिखोगे? ठीक है, IUPAC नेम लिखने के लिए जैसे द कॉमन नेम तो आप आराम से लिख सकते हो. इसको बोलते हैं अल्कोक्सी अल्केन. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया आपके लिए CH3OCS3. अभी CH3OCS3 में इसका अगर मुझे कॉमन नेम लिखना होगा तो क्या 2 मिथाइल दिख रहे हैं, तो क्या लिख दिया मैंने? डाई मिथाइल. और ये ईथर है तो लास्ट में ईथर लिख दिया. फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया CH3OC2H5. तो देखो अब ज़रा, अगर मुझे क्या लिखना होगा कॉमन नेम, तो अब इधर मिथाइल और यहाँ पे इथाइल है, मुझे लिखना तो इसी फॉर्मेट में. तो इथाइल मिथाइल तो अलग अलग हो गए. हाँ, अब अलग अलग हो गए तो मुझे नेमिंग करना है. कौन सा नाम लिखना है? कॉमन नेम. तो सबसे पहले क्या फॉलो करना पड़ेगा मुझे? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है, तो पहले क्या लिखोगे? इथाइल, देन मिथाइल, दे आर बॉन्डेड टू O, दैट इज़ ईथर. इथाइल मिथाइल ईथर. कितना सिंपल है, समझ में आ रहा है? पक्का? दूसरा, अब इसको मैं हटा देता हूँ इसको. नेक्स्ट, व्हेन यू हैव दिस स्ट्रक्चर CH3OCH3, ये देखो आप. अब ये कौन सा ग्रुप दिख रहा है आपको? ये भाई इसके सेकंड पोजीशन अटैच है ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? दिस इज नोन एज आइसोप्रोपाइल. और यहाँ पे क्या है? मिथाइल. तो पहले कौन सा आता है? पहले कौन आता है? पहले आता है M. आइसोप्रोपाइल का I कंसिडर नहीं करना, क्या करना है? P कंसिडर करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में. आइसोप्रोपाइल का क्या कंसिडर करना है मुझे? P कंसिडर करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में. तो ये है मेरे पास मिथाइल, फिर क्या बेटा? आइसोप्रोपाइल, फिर क्या बेटा? ईथर. कितना सिंपल है? सिंपल है कि नहीं है? आप देख लो और बता सकते हो आप आराम से. ठीक है, क्लियर हो गया? पक्का? ओके, अब इसका क्या करेंगे हम लोग? IUPAC नेमिंग करेंगे. बेटा जो इसका नेमिंग है ईथर का, वो बहुत ही सिंपल है. मैंने क्या बोला कि व्हेन यू आर गोइंग फॉर IUPAC नेमिंग, देन व्हाट यू हैव टू राइट डाउन? अल्कोक्सी अल्केन. तो एग्जाम्पल के लिए देयर इज यू कैन सी फर्स्ट एग्जाम्पल हियर.
फर्स्ट एग्जांपल CH3OCH3, तो अभी मैंने बोला था इसका डाइमिथाइल ईथर। थोड़ा सा इसको और जूम करके देखते हैं, ठीक है। अभी आप नेक्स्ट देखो ज़रा, यहाँ पे फिर क्या बोला मैंने कि जब आप लिखते हो तो अल्कोक्सी अल्केन लिखना है आपको, अल्कोक्सी अल्केन। तो आप देखो ज़रा, यू हैव दिस CH3O एंड CH3। तो ये देखो अल्कोक्स, ये जो ग्रुप हो गया, बिकॉज ईथर के लिए कोई सफिक्स नहीं होता, क्या होता है उसके लिए, वो प्रीफिक्स की तरह होता है। और ईथर का जो प्रीफिक्स होता है दैट इज़ अल्कोक्सी। फॉर ईथर देयर इज ओनली प्रीफिक्स, एंड प्रीफिक्स इज व्हाट, अल्कोक्सी, देयर इज नो सफिक्स। तो अल्कोक्सी और फिर लॉन्गेस्ट चेन अल्केन, ठीक है। तो देख लो आप यहाँ पे, ये क्या हो गया, ये हो गया मिथॉक्सी। आप इधर से भी ले सकते हो तो भी मिथॉक्सी आएगा। और फिर लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का, एक कार्बन का, ठीक है। इसको मैं हटा दूँ, हाँ। तो एक कार्बन का, अब ये आप, मैं एक बार फिर से आपके लिए दिखा देता हूँ, CH3O CH3, दिस इज मिथॉक्सी, दिस इज मिथॉक्सी, और ये आपका लॉन्गेस्ट चेन है, तो ये क्या है, मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन या अल्कोक्सी अल्कीन इज द कॉमन नेम फॉर ईथर। सो वहाँ पे देख लो आप, इसे यहाँ पे लिखा है मिथॉक्सी मीथेन, देख सकते हो। सो अगर मुझे, मैं फिर से यहाँ पे आपके लिए कर देता हूँ C2H5O C2H5। अभी आप किसी भी साइड में देख लो कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन आ रहा है, 2 कार्बन। तो आप किसी साइड को आप ले लो लॉन्गेस्ट चेन, ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट चेन 2 कार्बन का, और जो बाकी बचेगा O के साथ, ये क्या बन जाएगा, कितने कार्बन इसमें, 2, तो ये बन जाएगा इथॉक्सी। और कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, 2, सो इथॉक्सी इथेन। ये वाला पार्ट लॉन्गेस्ट चेन में ले लिया आपने, ये वाला पार्ट आपने लॉन्गेस्ट चेन में लिया है, और जो बाकी बच गया वो क्या हो गया, इथॉक्सी, एल नहीं है यहाँ पे, ओनली इथॉक्सी इथेन। ओके, चलो अभी नेक्स्ट थोड़ा सा अलग टाइप का करते हैं। नाउ यू हैव दिस CH3O और क्या, CH2 एंड क्या, CH3। अब इसका अगर मुझे कॉमन नेम बताना होगा तो क्या होगा, देखो ये मिथाइल है और ये क्या है, एन प्रोपाइल, तो ये हो गया मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। तो एन प्रोपाइल में एन हमने लिया क्या, नहीं, पी से लिया है, तो मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। बट हमें क्या इंटरेस्ट है, IUPAC में, तो लॉन्गेशन कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का, तो ये लॉन्गेशन हो गया। बाकी जो बचेगा वो क्या हो गया, अल्कोक्सी। तो अल्कोक्सी में क्या दिख रहा है आपको, मिथॉक्सी कितने कार्बन का लॉन्गेशन है, 3 कार्बन का मतलब प्रोपेन, सो प्रोपेन, मिथॉक्सी प्रोपेन। आप ये भी लिख सकते हो कौन से पोजीशन पे, जैसे यहाँ पे देखो, एक बार मैं थोड़ा सा और इसको क्लैरिफाई कर दूँ, ये O और फिर ये CH2 और फिर ये CH2 फिर ये CH3। तो ये देखो, ये इसका अगर मैं नंबरिंग करूँगा यहाँ से 1 2 3, तो ये 1 पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप है, तो आप 1 मिथॉक्सी भी ले सकते हो, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, सिंपल। ओके, नेक्स्ट you have this, just look here, C6H5O and CH3। अब ये क्या है, मिथाइल, कॉमन नेम बता रहा हूँ मैं, और व्हाट इज दिस, दिस इज फिनाइल। तो पहले कौन आएगा, M, तो नाम क्या होगा इसका कॉमन नेम, मिथाइल फिनाइल ईथर। दिस इज ऑल्सो नोन एज एनिसोल, सो मिथाइल फिनाइल ईथर और एनिसोल, ये कॉमन नेम हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, IUPAC। अब बता दो जरा, अब इसमें 6 कार्बन है और यहाँ पे क्या है, 1 कार्बन के साथ, तो ये क्या होगा, मिथॉक्सी बेंजीन। सिंपल सा ना। ये मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास ये C6H5 हो गया, O हो गया एंड CH3, तो ये देखो आपका, ये हो गया आपका मिथॉक्सी और ये हो गया आपका बेंजीन। तो इसका नाम क्या होगा भाई, मिथॉक्सी, ये मिथॉक्सी ग्रुप हो गया, ये बेंजीन हो गया, तो नाम क्या हो गया उसका, मिथॉक्सी बेंजीन। और एनिसोल ज़्यादा पॉपुलर एज़ कम्पेयर टू मिथॉक्सी बेंजीन। क्लियर, मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा फटाफट। ओके, नेक्स्ट देख लो आप। अब यहाँ पे भी आप क्लियर देख सकते हो, यहाँ पे क्या दिख रहा है, इथॉक्सी बेंजीन,
इथॉक्सी बेंजीन और इथाइल फिनाइल ईथर। गेटिंग द पॉइंट? पक्का? ओके, अभी नेक्स्ट देखो ये वाला देखो। अब इसमें देखो उन्होंने दिया C6H5O और फिर ये CH2 कितना टाइम्स है? 6 टाइम्स और फिर ये CH3, मतलब ये 7 हो गया, 7 और ये कितने हैं? 6 कार्बन का। तो अब ये क्या है आपका? 7 का मतलब ये हेप्टाइल है, हेप्टाइल ग्रुप है और ये क्या है? फिनाइल। तो पहले H आता है कि P आता है? पहले H आता है, तो हेप्टाइल फिनाइल ईथर, हेप्टाइल फिनाइल ईथर, हेप्टाइल फिनाइल ईथर। अब मुझे अगर आईपीसी नेम बताना होगा तो क्या करूँगा? ये कितने कार्बन का लॉन्गेशन है? ये इधर 7 कार्बन, इधर 6 है, तो ज़्यादा लॉन्गेशन कितने कार्बन का होगा? 7 कार्बन का। और इस 7 कार्बन के लॉन्गेशन में इसके फर्स्ट पोजीशन पे क्या अटैच है? कौन सा? फिनॉक्सी। जैसे आप लिखते हो ना इथॉक्सी मिथॉक्सी, तो वैसे ही फिनाइल है तो क्या बनेगा? फिनॉक्सी। कट कर दो इसको, यस। तो इसका आईपीसी नेम क्या होगा? फिनॉक्सी। कौन सी पोजीशन पे? 1 फिनॉक्सी हेप्टेन, 1 फिनॉक्सी हेप्टेन, 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। क्लियर? पक्का? चलो अच्छा, नेक्स्ट करते हैं फिर। नेक्स्ट में देखो यहाँ पे ये मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया CH3O CH, ये तो अभी आपको बताया था CH3 एंड CH3। तो इसका कॉमन नेम तो बहुत ही सिंपल है, ये हो गया मिथाइल, ये हो गया आइसोप्रोपाइल और क्या? ईथर, मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। बट अगर मुझे इसका क्या लिखना होगा? इसका अगर मुझे लिखना होगा कौन सा नेम? आईपीसी नेम। तो आईपीसी नेम के लिए देखो जरा, अब ये लॉन्गेशन इधर दिख रहा है 1 2 3, या इधर से नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3, किधर से भी करूँ? 3 कार्बन का लॉन्गेशन, और इसके सेकंड पोजीशन पे, जो लॉन्गेशन इसके सेकंड पोजीशन पे क्या अटैच है? मिथॉक्सी ग्रुप। कौन सा पोजीशन पे? सेकंड। सो व्हाट वुड बी द नेम? दैट इज 2 मिथॉक्सी क्या? प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। भाई इसके सेकंड पोजीशन पे 3 कार्बन का लॉन्गेशन है, और इस लॉन्गेशन के थर्ड पोजीशन पे क्या, सेकंड पोजीशन पे सॉरी अटैच है कौन सा ग्रुप अटैच है? मिथॉक्सी ग्रुप अटैच है। दिस इज 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। गेटिंग द पॉइंट? ओके, गुड। नेक्स्ट, just look here, you have this C6H5, let me zoom it, ये देखो आप, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको क्या? फिनाइल, और यहाँ पे 1 कार्बन 2 3 4 5 कार्बन ही है। तो ये क्या हो गया? अब ये कौन सा, ये जो ग्रुप दिख रहा है बेटा, अगर मुझे इसका ग्रुप पहचानना आना चाहिए ना, देखो ऐसे बनाया मैंने, CH3 फिर CH, CH3 फिर CH2 एंड CH2, यही ग्रुप है, ये इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये दिख रहा है आपको, ये क्या है? आइसोप्रोपाइल। ये आइसो है ना, ये आइसो है, बट इस आइसो में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। अगर 3 कार्बन ही होते तो प्रोपाइल बोल देते आप, बट इसमें 5 कार्बन, तो क्या बोलेंगे इसे आप? आइसोपेंटाइल, आइसोपेंटाइल ग्रुप। तो ग्रुप पहचानना आना चाहिए कॉमन नेम के लिए, ठीक है? तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो आपके पास है दिस इज व्हाट, दिस इज आइसोपेंटाइल, आइसोपेंटाइल, एंड दिस इज, ये तो आपको पता ही है, फिनाइल, आइसोपेंटाइल फिनाइल। तो पहले कौन आएगा? फिनाइल। सो आप उसको कंपेयर कर सकते हो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे। सो फिनाइल, आइसोपेंटाइल, व्हाट? ईथर, आइसोपेंटाइल ईथर, ठीक है? पक्का? क्लियर? चलो अब इसका क्या करते हैं? आईपीसी करते हैं। इंटरेस्टिंग। अब इधर कितने कार्बन दिख रहे हैं बेटा? यहाँ पे कितने कार्बन है? 6। यहाँ पे कितने हैं? इधर 5, इधर 6 कार्बन, इधर 5 कार्बन है। तो भाई 6 कार्बन वाले का लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा, और ये 5 कार्बन का साइड चेन बनेगा। तो इसको देखो जरा, अब इसमें भी तो अटैचमेंट है ना। अब देखो यहाँ पे इसके इससे अटैच ये 1 2 3 पे क्या है? मिथाइल है। ये ओ से अगर मैं स्टार्ट करूँगा तो 3 पे क्या है इसके पास? 3 पे क्या है इसके पास? मिथाइल। एक बार फिर से देख लो आप, इसको कट करता हूँ मैं, फिर से देख लो आप एक बार, ठीक है? तो आप यहाँ से हम लोगों ने नंबरिंग स्टार्ट किया था, ये 1, तो इसके थर्ड पोजीशन पे देखो, ये थर्ड पोजीशन पे, ये मेरा मेन हो गया बेंजीन, ये 1 2 3 4, थर्ड पे क्या है? मिथाइल। सो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, और ये टोटल कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है? ये जो जो ओ के साथ अटैच रहेगा
4 कार्बन का, तो ये क्या हो गया, ब्यूटॉक्सी, 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी, 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। बेंजीन जो है ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया अपना 6 कार्बन का, उसमें ब्यूटॉक्सी है। ब्यूटॉक्सी का मतलब इसे मुझे लिखना होगा अगर इसका, तो मैं लिखूँगा C6H5। ब्यूटॉक्सी का मतलब ऐसे CS2 4 कार्बन बना दिया मैंने। और इसके 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 थर्ड पोजीशन पे ये जो मेरा इसके, इसीलिए तो इसके ब्यूटॉक्सी के पहले लिखा है 3 मिथाइल, मतलब इस ब्यूटॉक्सी के थर्ड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप अटैच है, मिथाइल ग्रुप अटैच। ब्यूटॉक्सी के थर्ड पोजीशन पे क्या अटैच है, मिथाइल ग्रुप अटैच। ये थोड़ा सा आप ध्यान देना, ठीक है, पक्का, ओके। अगर डाउट होगा तो फिर से पूछ सकते हो आप। इसके बाद वाला और इंटरेस्टिंग है। अब ये देखो, ये हो गया मेरा लॉन्गेस्ट चेन। इसके इधर भी क्या है, इधर भी क्या है, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी दिख रहा है ना। अब इसका कॉमन नेम तो है नहीं, कॉमन नेम भाई उसका कुछ तो होना चाहिए सिस्टम, इसीलिए तो IUPAC आया जहाँ पे कॉमन नेम सबके लिए नहीं लिख सकते थे हम लोग। तो ये कितना है, इस वाले ग्रुप से दोनों कार्बन से दोनों साइड में मिथाइल है। कौन सा पोजीशन पे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 1 और 2 पोजीशन पे मिथॉक्सी है। सो 1,2 डाईमिथॉक्सी, डाईमिथॉक्सी व्हाट, इथेन, डाईमिथॉक्सी इथेन, ठीक है, 1,2 डाईमिथॉक्सी इथेन। नेक्स्ट, आप नेक्स्ट देखो, लास्ट वन। अब देखो ये, अब ये मेरा मेन ग्रुप है, मेन, ये फंक्शनल ग्रुप है ना इधर, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी बेटा, कुछ भी कर लो, ठीक है। अब फिर यहाँ पे 2 है, बट हाँ अगर मैं ये ऐसे लिख देता, बस थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे मैंने लिखा OC2H5 और इस कार्बन पे CH3 रहता, ओनली CH3, यहाँ पे ओनली CH3 रहता, तो फिर तो नंबरिंग यहीं से होती 1 2। बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है इस वाले केस में, कि इस वाले केस में इसको मैं रब करता हूँ, नंबरिंग हमें कहाँ से करनी पड़ेगी, यहाँ से। आप बोलोगे क्यों सर, अभी तो आप बोल रहे थे फंक्शनल ग्रुप है, फिर आपने नंबरिंग यहाँ की। क्योंकि जो IUPAC में रिकमेंडेशन है बेटा कि हमें अपने ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो अगर मैं 2 केसेस आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ, ये दोनों हटा देता हूँ मैं यहाँ से और फिर से आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखो आप, OC2H5 और यहाँ पे बेटा है CH3 और यहाँ पे है CH3, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूँ और यहाँ पे 2 और एक बार यहाँ पे 1 कर लूँ और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे देखो ज़रा, यहाँ पे 1 प्लस ये 1 प्लस 1 प्लस 2, मतलब एक पोजीशन पे, जो फर्स्ट पोजीशन पे इस पे 2 ग्रुप हैं, तो 1 2 बार आएगा, तो टोटल कितने होंगे यहाँ पे 4, टोटल 4 आएगा ऐड करने पे। और यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे 2 ग्रुप अटैच है, तो इसका ऐड करने पे 2 + 2 + 1 कितना आएगा 5। आप मुझे बता दो सिंपल सा कि ज़्यादा कौन है, ये ज़्यादा है। बट हमारा रूल क्या है IUPAC में, यही रूल क्या है, रूल हमारा क्या है कि हमें ऐसे नंबरिंग करनी है जिससे सभी ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले, लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप, ईथर फंक्शनल ग्रुप है, बट वो अल्कोहल फिनॉल ईथर जैसा प्रायोरिटी ऑर्डर में उसका कुछ पोजीशन नहीं है, केवल उसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग, प्रीफिक्स लिखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में, जैसे ईथर के लिए हम कौन सा रूल अप्लाई करने वाले हैं कि भाई जहाँ पे ऐसे नंबरिंग करो जिससे सबको लोएस्ट मिल जाए। तो अगर लोएस्ट मिलने की बात आएगी तो ये वाला अप्लाई करेंगे, ये वाला अप्लाई नहीं करेंगे। अगर हमने ये वाला अप्लाई कर लिया तो नाम क्या होगा बेटा, अब 1 पोजीशन पे 2 मिथाइल और सेकंड पोजीशन पे इथॉक्सी है, तो पहले इथॉक्सी ई आएगा, सो 2 इथॉक्सी, फिर क्या 1,1 डाईमिथाइल, 1,1 डाईमिथाइल क्या साइक्लो, ये साइक्लो ही तो है ना, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। सो 2 पोजीशन पे इथॉक्सी है, 1 पोजीशन पे 2 मिथाइल है, तो 1,1 डाईमिथाइल, फिर साइक्लोहेक्सेन। गेटिंग द पॉइंट, पक्का। तो ये आपका हो गया किससे रिलेटेड, IUPAC ऑफ क्या, ईथर्स। और भी क्वेश्चन है तो मैं आपको देख के बताता हूँ, ठीक है। चलो इसको रब करते हैं। यू आर फ्री टू आस्क एनी डाउट,
देयर मे बी सम डाउट रिलेटेड टू ईथर्स, सो यू आर फ्री, आपको पूछना है। बट पूछने वाले मेरे बच्चे कितने हैं, 15 से 20 बच्चे ही पूछ रहे हैं, बाकी सब लोग तो दे आर बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो गए हैं, उनसे बातें करना ही बेकार भाई। चलो तो फिर देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन। ओके, अभी आप देख लो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन ईथर पे, जो क्वेश्चन ईथर बेस्ड है उसको आप देख सकते हो। ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो ईथर बेस्ड है, आप 10 ट्राई कर सकते हो, आप 11 ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और आप ये देखो यहाँ पे जो लिखा है ना, ये एन, एन का मतलब है कि ये नॉर्मल एन, ये क्या है C7H15, ठीक है। तो ये एन का मतलब जैसे एन प्रोपेन होता है ना, एन प्रोपाइल ग्रुप लिखते हो, एन ब्यूटाइल ग्रुप, तो वैसे ये एन है, कितने कार्बन का 7, तो एन हेप्टाइल है, मतलब एन हेप्टाइल का मतलब ये O से अटैच कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कार्बन अटैच है, तो उन्होंने एक ही साथ लिख दिया क्या C7H15 और ब्रैकेट में एन कर दिया, तो आप उससे परेशान मत होना। और ये फिर 12th, तो आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ये, तो लेक्चर के बाद आप ये चारों क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे दिखा दो, ठीक है। और फिर देखता हूँ कोई क्वेश्चन है आपके पास, राइट द स्ट्रक्चर। अब तो आप स्ट्रक्चर भी, जैसे यहाँ पे देखो आप जरा, यहाँ पे मुझे दिख रहा है 1 इथॉक्सी प्रोपेन, मैं एक लिख देता हूँ 5th वाला, 1 इथॉक्सी प्रोपेन, प्रोपेन का मतलब 1 2 3। अब इसके फर्स्ट पोजीशन पे क्या इथॉक्सी, इथॉक्सी का मतलब OC2H5, आप इधर भी कर सकते थे इधर भी कर सकते थे, बाकी क्या ऐड कर दो CS2 और क्या CS3, हो गया आंसर, सिंपल। तो आप ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, आप 6 ट्राई कर सकते हो, ये तो एल्कोहल का आपने किया ही होगा और ये भी किया होगा, तो इसमें दो ही हैं, दो स्ट्रक्चर हैं, तो 5th एक मैंने बता दिया, एक आप ड्रॉ कर सकते हो। और क्वेश्चन रिलेटेड टू, अब मैं इसमें और भी क्वेश्चन देख लेता हूँ। इधर मुझे लगता है आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। अभी तो इस पर क्वेश्चन नहीं है, वही 2-4 क्वेश्चन है, तो आप सॉल्व करके मुझे दिखा दो, ओके। चलो, ओके, थैंक यू बेटा फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर और वॉचिंग टिल एंड, थैंक्स अ लॉट। एनी डाउट प्लीज़ आस्क।